उत्पत्ति 9 का 5 और 6। और निश्चय की मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। ஆதியாகமம் 9வது அதிகாரம் 5-6 வசனங்களை வாசிக்கிறோம். உங்களுக்கு உயிராய் இருக்கிற உங்கள் ரத்தத்திற்காக பழி வாங்குவேன். சகல ஜீவ ஜந்துக்களிடத்திலும் மனுஷனிடத்திலும் பழி வாங்குவேன். மனுஷனுடைய உயிருக்காக அவனவன் சகோதரனிடத்தில் பழி வாங்குவேன். மனுஷன் தேவ சாயலில் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் மனுஷனுடைய ரத்தத்தை எவன் சிந்துகிறானோ அவனுடைய ரத்தம் மனுஷனாலே சிந்தப்பட கடவுது. तो आज हम 3 बातों को देखेंगे। एक, मनुष्य के जीवन, चौथा में 3 बातों का। दूसरा है आपको सरकार की स्थापना। तीसरा सरकार की जिम्मेवारी। मनुष्य के जीवन, सरकार की स्थापना और सरकार की जिम्मेवारी. இன்றைக்கு நாம் 3 காரியங்களை இந்த 4வது ஏற்பாடுல பார்க்க போறோம். ஒன்று மனிதனுடைய உயிர், இரண்டாவது அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்துவது, மூன்றாவது அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு. இந்த 3 காரியங்களை நாம் இங்கு பார்க்கிறோம். இந்த 2 வசனம் परमेश्वर के लिए सारे उनके सृष्टियों में, सारे जीव जंतुओं में, पेड़ पौधा में सबसे अनमोल, सबसे कीमती और सबसे पवित्र है मनुष्य का जीवन, अर्थात आपका और मेरा जीवन. ஆண்டவருடைய சகல சிருஷ்டிகளிலும், சகல ஜீவ ஜந்துகளிலும், சகல புல் பூண்டுகளிலும் மிகவும் அருமையானது, ஆண்டவருடைய பார்வையில ஆண்டவருக்கு மிகவும் அருமையானது, பரிசுத்தமானது, மிகவும் முக்கியமானது என்று சொல்ல போனால் அது மனிதனுடைய ஜீவன் தான், மனிதனுடைய உயிர் தான். நீங்களும் நானும் தான். நம்முடைய ஜீவன், நம்முடைய உயிர் ஆண்டவருக்கு மிகவும் முக்கியமானதாய் இருக்கிறது. क्योंकि मनुष्य परमेश्वर स्वरूप में बनाया गया है और परमेश्वर के प्रतिनिधित्व वही धरती पे वो करता है. காரணம், மனிதன் தேவ சாயலில் உண்டாக்கப்பட்டு இருக்கிறான். மாத்திரமல்ல, அதனால் அவன் தேவனை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறான் இந்த பூமியிலே. அதாவது மனிதன் ஆண்டவருக்கு பதிலாக இங்கே இருக்கிறான். दूसरे जीव जंतुओं, दूसरे पेड़ पौधे और कोई दूसरे परमेश्वर की सृष्टि परमेश्वर के स्वरूप में है, न उसका प्रतिनिधित्व करता है. வேற எந்த மனிதனுடைய தேவனுடைய வேற எந்த சிருஷ்டியோ, அத விலங்குகளாய் இருந்தாலும், பறவைகளாய் இருந்தாலும், நீர்வாழ் ஜந்துக்களாய் இருந்தாலும், அல்லது வேற ஆகாயத்தில் உள்ள எந்த ஒரு பொருட்களாய் இருந்தாலும், நட்சத்திரங்களாய் இருந்தாலும், சூரிய சந்திரனாய் இருந்தாலும், அவை ஒன்று கூட தேவசாயில் உண்டாக்கப்படவில்லை. ஆகையினால் அவைகள் தேவனை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதும் இல்லை. इसी कारण परमेश्वर क्या करता है, इंसान का अगर हत्या हो गया है, इंसान का खून को कोई दूसरा इंसान या कोई दूसरा जीव जंतु कर दिया, तो परमेश्वर जिसने
इंसान का लहू बहाया, जिस जीव जंतु या पशु ने इंसान को मार दिया, उससे परमेश्वर क्या करेगा? पलटा लेगा, बदला लेगा। ஆகையினால் எந்த மனிதனுடைய ரத்தம் சிந்தப்படுகிறதோ அவனுக்காக சிந்தனை ஒரு மனிதனாய் இருந்தாலும் அல்லது மனிதனுடைய சிந்தனை ஒரு மிருகமாய் இருந்தாலும் ஆண்டவர் அவர்களிடத்திலே பழி வாங்குவார். बाइबल में निर्गमन 21 का 12, 13, 14, उसके बाद गिनती के पुस्तक 35 के 16 से लेकर 32, फिर रोमियो के 13 अध्याय का 3, 4, फिर पहला पत्र का दूसरा अध्याय 13 और 14 पढ़ेंगे। वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर खूनी से कैसे बदला लेने वाला है, उसको कैसे मौत की सजा दिया जाएगा, ये बात उसमें लिखा है। யாத்திராகமம் 21-12 வசனங்களிலும் என்னாகும் 35 அதிகாரம் 16 32 வசனங்களிலும் ரோமர் 13 அதிகாரம் 3-4 வசனங்களிலும் 1 பேதுரு 2 அதிகாரம் 13-14 வசனங்களிலும் வாசித்தால் எப்படி மனிதனை கொலை செய்தவனிடத்துல அதை செய்கிறவனிடத்துல ஆண்டவர் பழி வாங்குகிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது அவனுடைய ஜீவன் எடுக்கப்படும். அது எப்படி என்று இங்கே வாசித்து பாருங்கள். இந்த வேத பொய் இதை தெளிவாக சொல்லுகிறது. निर्गमन 21 अध्याय का 28 से लेकर 32 तक पढ़ेंगे। कोई जानवर किसी इंसान को मार दिया है तो उस जानवर से भी कैसे लिया जाएगा बदला, परमेश्वर वहां भी लिख करके रखा है. आप पढ़िए हमारे समय चाहते हैं. யாத்திராகமம் 21 அதிகாரம் 28 முதல் 39 வசனங்களை வாசிச்சா, மிருகமானது ஒரு மிருகம் மனிதனை கொன்று விட்டால் அது எப்படி கொல்ல வேண்டும், ஏன் கொல்ல வேண்டும் என்பதை அங்க ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார். मतलब है ईश तंत्र. ईश तंत्र मतलब थियोक्रेसी. हम लोग किस तंत्र में अभी हैं? किस तंत्र में अभी हैं? लोकतंत्र, प्रजातंत्र, इसके पहले था राजतंत्र. ईश तंत्र में ये प्रावधान है. ये प्रावधान नहीं, ये लिखा हुआ है कैसे बदला लिया जाएगा इंसान के खून के कारण. தியோக்ரசி தமிழ் எனக்கு தெரியல. தியோக்ரசினா தேவனுடைய ஆளுகை உள்ள அந்த ஒரு சிஸ்டத்துல, இப்ப நம்ம இருக்கிற சிஸ்டம் என்னன்னா ஜனநாயகம், இதுக்கு முன்னாடி இந்த ராஜநாயகம், ராஜாவின் ஆளுகை, இப்போது இருக்கிறது மனுஷனே ஆளுகிறா, மக்கள் ஆளுகை சொல்லுவாங்க. மக்கள் ஆளுகை, மக்களாட்சி, அரசாட்சி இதுல இல்ல ராஜாவுடைய ஆட்சியில. ஆனா தேவன் ஆட்சி செய்கிற அந்த ஆட்சியில ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார், எப்படி ஒரு மனிதனை இன்னொரு மனிதன் கொண்டு விட்டால் அவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுப்பதென்றும், அல்லது ஒரு மிருகம் ஒரு மனிதனை கொண்டு விட்டால் அந்த மிருகத்துக்கு எப்படி மரண தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்று देव आक्षी थियोक्रेसी का मतलब क्या है? इजराइल देश में राजा लोग आने से पहले न्यायी लोग द्वारा परमेश्वर राज करता था और व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया था, उसी के द्वारा लोगों को चलाया जाता था. இஸ்ரவேல் தேசத்தில் ராஜாக்கள் வருவதற்கு முன்பாக ஆண்டவர்
நியாயாதிபதி மூலமாய் ஆளுகை செய்தார் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோட. மோசே மூலமாய் கொடுத்திருந்த அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் மூலமாய் இவர்களை நடத்தினார். इसी को बोलते हैं थियोक्रासी. इதைத்தான் சொல்றோம் இறை ஆட்சி என்று சொல்றோம். तो आप यहाँ देखते हैं परमेश्वर जहाँ राज करता है वहाँ ये प्रावधान है. தேவன் ஆளுகை செய்கிற அந்த ஆட்சியில மனுஷனுடைய ரத்தத்துக்கு பழிவாங்கல் இருக்கிறது. सबसे बड़ा परमेश्वर का मनुष्य का सबसे बड़ा रक्षक परमेश्वर है. மனிதனை பாதுகாக்கிறவர் மிகவும் பெரிய பாதுகாப்பு யார் அப்படின்னா அது தேவன் தான். उत्पत्ति 4 अध्याय 9 से 12 में ये लिखा होगा. இது ஆதியாகமம் 4வது அதிகாரம் 9 முதல் 12 வரை வசனங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. कैसे हम आपको याद दिलाएं? जब कैन ने हाबिल को मार डाला है तो किसने कैन से बातचीत किया? परमेश्वर. किसने उसको दंड दिया? परमेश्वर. परमेश्वर ने कहा उसका लहू मुझे पुकारता है धरती से. सो परमेश्वर ही मनुष्य के लिए बहुत बड़ा रक्षक है, सुरक्षा वही है. இந்த காரியத்தை ஆதியாகமத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். ஆபேலை காயின் கொன்ற பொழுது ஆண்டவர் தான் காயின் பேசுகிறார். எங்கே உன் சகோதரன், ஏன் கொன்றாய்? அவன் தண்டனை அவர் தான் கொடுத்தார். அவர் தான் சொன்ன உன் சகோதரனுடைய ரத்தம் பூமியிலிருந்து என்னை கூப்பிடுகிறது என்று சொல்லி. यही वजह है जो मानवाधिकार जन्मा मसीही देशों में से पश्चिम जगत से जन्मा, क्योंकि वे बाइबल को पढ़े तो मानव अधिकार को समझे, वो सुधरने लगे. மனித உரிமையும் மனித உரிமை ஆக்டிவிஸ்டுகளும் ஆகையினால்தான் மேற்குலகத்திலிருந்து அதாவது கிறிஸ்தவ நாடுகளிலிருந்து எழுப்பினார்கள். ஏனென்றால் வேதத்துல மனித உரிமை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இதை வாசித்தவர்கள் அதான் இன்ஸ்பயர் ஆனாங்க, மனித உரிமைகள் பெறும். आपको मुझको क्या करना है? हम मनुष्य के जीवन को अन्य जानवरों से, अन्य पेड़ पौधा से बहुमूल्य समझेंगे. நாம் மனிதன் உயிரை மற்ற மிருகங்கள், பட்சிகள், ஜீவராசிகள், மரம், செடி, கொடிகளை காட்டி வேல்யூ உள்ளவர் என்பதை நாம் மதிப்போம் मनिदने और हम लोग उनका आदर भी करें। जानवर को ना आदर करें, पेड़ पौधा का हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इंसान को आदर करेंगे। நாம் மனிதனை மதிப்போ மிருகங்களை அல்ல, மர செடி கொடிகளையும் दूसरा है सरकार की स्थापना है। இரண்டாவது அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்தும்। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर कहता है मैं बदला लूंगा। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए किसी को किसी ने मार डाल, एक को वही ने मार डाल, तो उसका बदला कौन लेगा? उसका बेटा भी लेगा, चार बेटा चारों बेटा लेगा, है ना, और उधर धमाद भी लेगा और पापा भी लेगा। कैसे लेगा? एक जन मार डाल दिया तो एक जन को मारेंगे, लेकिन इतने लोग बदला कैसे लेंगे? तो उनके बेटा को भी मारो, उनके पापा का मारो, पूरे खानदान को क्या करो? अरे संहार करो। ये ना होगा। பழி வாங்குவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்ல இருக்கும்போது ஒரு மனிதனை இன்னொரு மனிதன் கொன்று விட்டால் யார் பழி வாங்குவா? கொல்லப்பட்டவனுடைய வீட்டார் எல்லாரும் சேர்ந்து அவனை பழி வாங்கினா ஒரு மணி தான் கொல்ல முடியும்,
மனிதன் என்ன செய்யுமா, அவன் குடும்பத்தையே என்ன செஞ்சிருவான், கொண்டு போடுவான். सब कोई पलटा लेना लगेगा या हर एक दिन पलटा लेने लगेगा तो क्या अराजकता नहीं रहेगा, अराजकता हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, सारे समाज निरंकुश हो जाएगा. எல்லா மனிதனும் ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த நான் ரத்தத்துக்கா பழிவாங்கன்னு சொல்லி கிளம்புனா உலகத்தை என்ன நடக்கும், ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்காது, சீர்கெட்டு போகும். मतलब ये जो प्रावधान जो है वरुण आने वाले दिन में सरकार की स्थापना का पगले से कल्पना करके देखता है. அதாவது வரும் நாட்கள்ல அரசாங்கம் ஏற்படுத்தப்படுவதை இந்த என்ன சொல்றது மரண தண்டனை கொடுக்க பழிவாங்கல் இந்த ஒரு ஏற்பாடு முன் அறிவிக்கிறது. बाइबल में दानियल दूसरा अध्याय 37 में, फिर रोमियो 13 का 4, इन दोनों पढ़ेंगे आपको एक बात समझ में आता है. इसके बाद परमेश्वर इस वाक्य के बाद आगे जाते दानियल नबूकदनेस्सर का सपना का बताता है, तब बोलता है राजा आप राजाधि राजा हैं, आओ सारे जीव राशि को, सारे मनुष्य को, सारे राजाओं को, सारे देशों को परमेश्वर आपके हाथ में क्या कर दिया है, सौंप दिया है, आपके अधीन कर दिया है. इसका मतलब है परमेश्वर ही किसी को राजा बनाता है, परमेश्वर ही राज्य को स्थापना किया है, परमेश्वर लोगों को राज्य के अधीन में लाता है, सरकार. दानियेल 2:37 ரோமர் 13:4 என்ன சொல்லப்படுகிறது வாசிக்கும் பொழுது ஒன்று புரியுது. தானியேல் சொல்லுகிறான் நேபுகாத்நேச்சாரை பார்த்து அவன் சொப்பனத்தை விளக்க சொல்லும் பொழுது, ராஜாவே நீ மகா பெரியவர், ராஜாக்களையும் ராஜ்யங்களையும் பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் ஆண்டவர் பரலோகத்தின் தேவன் உம்முடைய கையில் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறான். அதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, ஆண்டவர் தான் ராஜாங்கத்தை ஏற்படுத்திருக்கிறார், அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். ஆண்டவர் தான் மனிதனை அரசாங்கத்தை கீழே வைக்கிறார் பிரஜைகளை தெரிகிறது. और रोमियो में क्या कहता है, पौलो सारे अधिकार परमेश्वर ओर से ये नियुक्त हैं, जो उसका विरोध करता है हमेशा का विरोध करता है. ओके, वो भी इसको करता है. इसका मतलब ये हमेशा के लिए. बाइबल परपेचुएट्स करके अंग्रेजी का मतलब हमेशा के सदैव के लिए इसको परमेश्वर बनाया है. ஆக ரோமர் 13:1-2-3 வாசிக்கும் பொழுது அங்க என்ன எழுதுக்குன்னா, எல்லா அதிகாரமும் தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்டவைகள், தேவனால் என்று ஒரு அதிகாரமும் இல்லை. ஆகையினாலே அதிகாரத்துக்கு எதிர்த்து நிற்கிறவன் தேவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறான். இங்க வசனம் சொல்லுகிறது, இந்த அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பலன் அதிகாரம் அது என்றென்றைக்கு உள்ளது. மனிதர்களை ஆண்டவர் அரசாங்கத்துக்கு கீழே வைத்திருக்கிறார் என்பதை இங்க வேதம் சொல்லுகிறது. और मान लीजिए मैंने कहा पहले एक एक जन हर एक जन पलटा लेना लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, एकदम हद से बाहर हो जाएगा. एक जन मार गया तो कितने जन को मार सकते हैं, एक जन को मारना है, लेकिन वो भी इंडिविजुअल नहीं, व्यक्तिगत लोग नहीं. मतलब क्या बोलेंगे, व्यक्ति नहीं है, इंडिविजुअल नहीं करना है. அதாவது ஒரு மனிதன் எல்லா மனிதனும் ஒவ்வொரு மனிதனும் பழிவாங்க ஆரம்பிச்சா அது என்னன்னா எதுவுமே ஒரு மிஞ்சி போகும், தண்டனை மிஞ்சி போய்விடும். एग्जाम्पल आप देखिएगा, कैन एक जन को मार डाल दिया, क्या किया, वो भलाई किया हाबिल ने, ये सब्जी को लाके दिया परमेश्वर के सामने, वो एकदम
भेड़ को ला के दिया, मोटा ताजा, तो बलि चढ़ाया, पर उसको अंगीकार किया है, इसको अंगीकार नहीं किया है कि इसका क्या है योगी, क्या करे परम देना इसलिए दान दे, परम उसको अनदेखी कर दिया, लेकिन इनका बेस्ट दिया, मन से दिया, परम क्या किया, आदर किया, स्वीकार किया। पर उसने गलत अच्छा काम किया, क्या करे उसने दंड दिया, मार दिया। ஆபேல் தன்னுடைய மந்தையில் தலையீற்றிலிருந்து கொழுமையான கொண்டு வந்து கொடுத்தா, ஆண்டை அங்கீகரித்தார், அவன் ரத்தம் சிந்தினானே பலி செலுத்தினான். இவனை எதையோ கொண்டு வந்தா, காய்கறி கொண்டு வந்தா, ஆக அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆண்டவர். இவன் நன்மை செய்ததுனால அவன் கொன்னே போட்டான். இப்போ ठीक नहीं है, சரி கிடையாது. दूसरा उसी वंश में आया लामे, उसी अध्याय के लास्ट में अगर 24 और 23 में 4, 28, 23 हम वासिக்கிறேன், हम पढ़ते हैं हिंदी में। और लामेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो, हे लेमे की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमे का 77 गुना लिया जाएगा। तमिल वासिக்கிறேன்। ஆதியாகமம் 4:23-24 ராமேக்கு தன் மனைவிகளை பார்த்து, ஆதாளே சில்லாலே நான் சொல்வதை கேளுங்கள், லாமேக்கு மனைவிகளே என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுங்கள். எனக்கு காயம் உண்டாக ஒரு மனுஷனை கொன்றேன், எனக்கு தளம் உண்டாக ஒரு வாலிபனை கொலை செய்தேன். காயினுக்கா 7 பலி சுமருமானா, ராமேக்குக்கா 77 பலி சுமரும். यहाँ क्या देखते हैं, लामे किसी कारण लड़ाई हुआ है पता नहीं, किसी ने उसको घायल कर दिया, किसी ने उसको चोट पहुंचा दी. ಲಾಮೆಗೆ ಯಾರೋ ಒರ್ತನ್ ಕಾಯ ಪಡ್ತಿ ಬಿಟ್ಟ, ಯಾರೋ ಒರ್ತನ್ ತಲಮು ಉಂಟಾಕಿ ಬಿಟ್ಟ. उसके लिए क्या देना है बदला? उसी को घायल कर दो, उसी को चोट पहुंचा दो. ಇದಕ್ಕೆ என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம்? அவனே காயப்படுத்து, அவனுக்கு தलम उंटाकि. लेकिन क्या कर दिया, मुझे घायल कर दिया, चोट पामा उसको मार ही डाल दिया. எனக்கு காயம் உண்டாக்கின தலங்குண உண்டாக்கின மனிதனை கொன்றே போட்டேன். यही तो हद से बाहर है. और बोलता है अगर कायन को कोई मार डाले 7 गुना लिया जाएगा बलता, तो हम लामे को कोई अगर मार डाल देगा 77 गुना 77 लोगों को मार डाल दिया जाएगा. ये नियम बना देगा. इसका वंश क्या करेगा, वही करेगा. तो कैसा अराजकता होगा. ये जल प्रलय के पहले का युग है. इसलिए परमेश्वर जल प्रलय के बाद में कहा था नहीं, यहाँ एक राज्य को एक सरकार को स्थापना करना है, उसको अधिकार देंगे, वो इसको करना है, किसी व्यक्ति नहीं करना. समझ में आ रहा? समझ में आ रहा चंदन? ये परमेश्वर करता है. इसका मतलब यही है. बाद में सरकार बना आगे जाके. அதாவது லாமேக் சொல்றான், என்ன ஒருத்த அடிச்சுட்டான்ல, அவனை கொன்னே போட்டேன். இப்ப சொல்றான், எவனாவது என்ன கொன்னுட்டா வச்சுக்க, அவன் வீட்டு இருந்து என்ன கொன்னுட்டா வச்சுக்க, 7-70 மடங்கு காயினுக்கா 7 பேரை பழி வாங்கினா எனக்கா 7-70 490 பேர் போடணுங்கிறான். இதுதான் இது
என்ன சொல்றது, ஒரு எல்லை இல்லாம போற ஒரு காரியம் மனிதன். ஆகையால் ஆண்டவர்கள் இன்னைக்கு இல்லை, ஒரு அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்துவேன், அது என்னோட பிரதிநிதியாக இருக்கும், அதை நான் அதிகாரப்படுத்துவேன், அதுதான் தண்டனை கொடுக்கும் ஒழிய தனி மனிதன் அல்ல. और अब सरकार का क्या हो गया, अधिकार परमेश्वर दे दिया, सरकार बन गया, अधिकार दे दिया, जिसको चाहे उसको क्या करे, दंड दे। आज वही तो हो रहा है, सरकार जिसको चाहे उसको अंदर धर देता, जिसको चाहता है उसको अंदर धर ही नहीं देता। मतलब नायक है क्या, लोग अंदर हैं, इसमें अच्छे लोग अंदर हैं, बुरे लोग बाहर ही है, अपराधी बाहर है, निरपराधी अंदर ही। इसको आप रोज हम लोग देखते हैं, पेपर में देखते हैं, फिल्म में देखते हैं। ஆண்டவர் ஒரு அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்துகிறார், அதை அதிகாரப்படுத்துகிறார், அதுதான் என்ன செய்யும், நியாயம் விசாரிக்கும். ஆனால் அது ஒரு நிரபராதி தண்டித்து விடக்கூடாது, ஒரு அபராதி விட்டு விடவும் கூடாது. क्या करना है, लिखा है, बाद में आप देखे बाइबल पढ़िएगा अपने घर पे, व्यवस्था विवरण 19 का 15, मत्ती 18 का 16 और इब्रानी 10 का 28। इन्हें आप अगर पढ़ेंगे, ये लिखा है किसी भी व्यक्ति को अगर इल्जाम लगा दिया खून का, तो उसको क्या करना है, उसका जो अपराध वो स्थापना करना, स्थापित करना है, 2 या 3 गवाह के द्वारा, नहीं तो मार। हो सकता है गवाही नहीं है, हो सकता वो निरपराधी हो, इसलिए उसको छोड़ना है, इसको न्यायपालिका ही करना है करके बाइबल बताती है। इन जगह पे आप देखिए तो आपको लिखा है वाकमम 19:15, மத்தேயு 18:16, எபிரேயர் 10:20 வாசிச்சா உங்களுக்கு தெரியும். 2-3 சாட்சிகளின் மூலமாகத்தான் ஒரு குற்றம் என்ன சொல்ல உறுதிப்படும். அப்பதான் அவனுக்கு என்ன செய்யணும், தண்டனை கொடுக்கணும். சும்மா கிடைச்சிட்டான் எனக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துடக்கூடாது என்று ஆண்டவர் சொல்றார். इसके द्वारा हम क्या समझ लेता हूं, இது மூலம் நாம் அறிந்து கொள்வது என்ன, हम जो प्रजा है कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है. பிரஜைகளாகிய நாம் சட்டத்தை கையில் எடுக்க கூடாது. यही तो हो रहा है, यही तो पश्चिम बंगाल में देखिए, पूरे भारत में और बाहर में देखिए, सो लोग अपना हाथ में लेते हैं, परमेश्वर कहता ना करना है, लेकिन हम जो क्रिश्चियन हैं, जो इसको सुनते हैं, इनसे बाइबल बताती है आप कभी कानून को हाथ में ना ले, लेकिन अधिकार का क्या करें, माने, उसका आज्ञाकारी बने, सरकार की बातों को माने, जो कानून उनकी बातों को माने. வேதம் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குது, நாம் அதிகாரத்தை கையில எடுக்காம நாம் சட்டத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்போ, சட்டம் தன் வேலை செய்யட்டும் என்று சொல்லி. और हम लोग प्रार्थना करें हमारे सरकार, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी, दोनों परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में काम करें, न कि इंसान का एक मिशन के रूप में. परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला बन करके काम करें, न कि किसी व्यक्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए. आपको मालूम है पिलातुस ने क्या किया, लोगों की इच्छा को पूरा किया है, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उसने यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ा दिया है. यही तो बहुत बड़ा गलत है, वो अपने जो अधिकार है उसको दुष्प्रयोग किया. यीशु ने कहा यदि ऊपर तो ओर से नहीं दिया जाता तो मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं. इसलिए अधिकार में रहने वाले लोग, शासक हो प्रशासक, कोई भी व्यक्ति हो, लोगों को ना खुश करने के लिए, अधिकार को दुष्प्रयोग न करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश में
गलत मतलब जो निरपराधियों को दंड न दे, इसके लिए आपको मुझे प्रार्थना करना है. நான் நம்முடைய மாநில அரசாங்கத்துக்காகவும் மத்திய அரசாங்கத்தை ஏன் ஜெபிக்கணும் அப்படின்னா, இவைகள் பிலாத்து எப்படி தன்னுடைய நாற்காலியை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக இயேசு சிலுவையில் அறைந்தானோ, எப்படி ஜனங்களை பிரியப்படுத்த மனதுள்ளவனாக ஒரு நிரபராதியாகிய நீதிவான இயேசு சிலுவையில் அறைந்தானோ, அப்படி நம்முடைய அரசாங்கங்கள் செய்துவிடக்கூடாது, மந்திரிகள் அதிகாரிகள் செய்துவிடக்கூடாது, ஆளுகள் செய்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக நாம் நம்முடைய அரசாங்கங்களுக்காக, அதிகாரிகளுக்காக, மந்திரிகளுக்காக, ஆளுகை செய்கிறவர்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். सरकार की जिम्मेवारी परमेश्वर की दृष्टि में आपके मेरे जीवन अनमोल है. ஆண்டோடைய பரல் உங்களுடைய என்னுடைய जीवन விலையேறப்பட்டது. दूसरा परमेश्वर की स्थापना किया राज्य को, सरकार को, शासन को. ஆண்டவரே தேவனே அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார், ஆளுகையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார், அதிகாரங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். மூன்றாவது பார்க்க பொழுது அந்த அரசாங்கத்துடைய பொறுப்பு, उस सरकार के क्या जिम्मेवारी है. आप देखिएगा उत्पत्ति 6 का 5 पढ़िएगा, उसके बाद 8 का 21, ஆதியாகமம் 6:5-8:21 ஒரு மன வாசம் पहले पढ़ते हैं. 6 का 5 पढ़ते हैं. यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उसके मन के विचार में जो उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है. ये 5. 8 के 21 में पढ़ते हैं. इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा. यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है. वासिக்கிறேன் 6:5. மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியில பெருகிறது என்று அவன் இருதயத்தின் நினைவுகள் தோற்றமெல்லாம் நிற்கும் கொள்ளாததே என்று கர்த்தர் கண்டு. 8:21 வாசிக்கிறேன். அதன் பின்பதை வாசிக்கிறேன். இனி நான் மனுஷ நிமித்தம் பூமியை சகிப்பதில்லை, மனுஷனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் அவன் சிறுவை தொடங்கி கொள்ளாததாய் இருக்கிறது. நான் இப்போ செய்தபடி இனி சகல ஜீவனை संगरिपதில்லை. अब यहाँ देखते हैं 6 का 5 में जो लिखा है वो जल प्रलय पहले की बात है. इस कारण परमेश्वर ने क्या किया, इन लोगों को नाश किया. अब जल प्रलय हुआ, अभी 1 साल तालाबंदी में रहे. कौन सा है, लॉकडाउन है ना. 8 जन अभी बाहर आ रहे हैं, इनमें परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहिए ना, लेकिन परिवर्तन हुआ नहीं. टेक्निक हमें ज्यादा यही अभी भी वैसा ही है. इसका मन का बुराई जो उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है पहले से भी, अभी भी. जिसके हमें नाश किया है, तालाबंदी में रख दिया. 1 साल ये लोग क्या कर दिए, जगह के अंदर आए, बाहर आए नहीं, सब सर्वनाश हो गया. अभी बाहर आया है, अभी कोई सीखा नहीं, सबक पाया नहीं, कोई परिवर्तन नहीं. अभी भी इंसान है, कोई तालाबंदी के पहले भी जैसे थे वैसे अभी भी लोग, कोई परिवर्तन हुआ हमारे लोगों में? कोई परिवर्तन नहीं. முதல்ல பாச்சு ஆண்டு சொல்ல இருதயத்தின் நினைவு தோற்றமெல்லாம் சிறுவையை தொடங்கி எப்படி இருக்குது கொள்ளாது இருக்குன்னு சொன்னாரு. அது நிமித்தம் ஜலப்பலை வந்து அழிஞ்சு போச்சு. இப்போ 1 வருஷம் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் வெளியே 8 பேர் வராங்க. இவ்வளவு பேர் சித்து போனதுக்கு அப்புறம் இவனுக்கு அறிவு வரணும் வேண்டாம். ஆண்டு அவன் நினைவு இருதயத்தின் நினைவு தோற்றமெல்லாம் கொள்ளாததா இருக்குமா போயிடும். नो चेंज. तब क्या करें, इसमें कोई परिवर्तन हो नहीं रहा. इसको अधिकार देंगे क्या हो जाएगा, हद से बाहर हो जाएगा. इसलिए हमको स्थापना करना है सरकार को. वो क्या करना है, इंसान को कंट्रोल करना है. இப்பொழுது ஆண்டவர் இவன் இப்படி விட்டுட்டேன் அப்படின்னா, இவங்க சட்டத்தை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா என்ன செய்வான்,
எல்லை மீறி போயிடுவான். ஆகையினால ஒரு அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்தி அது என்ன செய்யும், இது பெருகாதபடிக்கு தடை செய்ய வேண்டும். अब यही मकसद है. आप यहाँ देखते हैं छह का 1, 2, 3 में अगर पढ़ेंगे वहां लिखा है परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र के साथ क्या कर दिया है, विवाह कर दिया. जबकि परमेश्वर का बीज मानव बीज में क्या नहीं होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए. उसका ही परिणाम है दानव. उसमें लिखा मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य उत्पन्न होगा. परमेश्वर के लोगों से लोग उत्पन्न होंगे, लेकिन दोनों क्रॉस होगा कि क्या हो जाएगा, दोनों का हाइब्रिड है ना इधर का है ना उधर का. वो ना मानव रहेगा ना ईश्वर. दोनों के बीच में क्या है, दानव. इंसान 6 फुट का होगा तो 9 फुट का होगा, 10 फुट का. कैसा रहेगा. इनने एक दूसरे प्यार करेगा, ये दाना किससे प्यार करेगा, अपने लोग खाएगा ना. ஆதியம் 6, 1, 2, 3 வாசியம்னா தேவகுமாரும் மனுஷகுமாரத்தோட கலந்துட்டாங்க. அதன் விளைவாக ராட்சத பூமியில பிறந்தாங்க. சோ தேவ வித்தும் மனுஷ வித்தும் சேரக்கூடாது, தேவ பிள்ளைகள் உலக பிள்ளைகளோடு சேரக்கூடாது, ஐக்கியம் கொண்டு அவங்க ஒன்றாகி விட்டார்கள் என்றால் அதனுடைய விளைவு என்னாகும், பயங்கர மோசமாயிருக்கும். परमेश्वर लोग और संसार के लोग के बीच में क्या होना चाहिए, दोस्ती होना चाहिए, लेकिन संगति नहीं होना चाहिए, उठा बैठी नहीं होना चाहिए, लेन देन ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा होगा तो क्या होगा, इनका व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा जो समाज को सत्यानाश करेगा. दुनिया में क्या हो गया, बॉलीवुड देखिए ना, बहुत क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, एक्ट करने के लिए आ गए, म्यूजिक के लिए आ गए, लोग बहुत फेमस हो गए, लेकिन उनके द्वारा सर्वनाश हो रहा है समाज में. இன்னைக்கு பாலிவுட்டையும் பாலிவுட்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா, கிறிஸ்தவங்க இசையமைப்பாக மாறிட்டாங்க, நடிகளா மாறிட்டாங்க. இன்னைக்கு அவங்க பேர் போலாம் என்ன ஆச்சு, இவங்க மூலமா தேசம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது, நாசமாய் கொண்டிருக்கிறது. सो इसको करना है, इसको कंट्रोल सरकार को करना है. सरकार इस प्रकार गलत काम ना होने के लिए कंट्रोल करना है. सबोपदेश 12 का 14, रोमियो 14 का 12 पढ़िएगा. प्रसंगी 12-14, रोमर 14-12 वासी. அந்தரங்கமான ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நன்மையானாலும் தீமையானாலும் தேவன் நியாயத்தில் கொண்டு வருவார். ரோமர் 14-12 நம்மில் ஒவ்வொருவரும் தன்னை குறித்து தேவனுக்கு கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். இனிமே படவும், क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों परमेश्वर सब कामों सब गुप्त बातों का क्या करेगा, चाहे वे भली हो या बुरी, भली हो या बुरी न्याय करेगा. मतलब मनुष्य के अंदर की जो सोच है ना, उससे परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा. रोमियो 14-14-12. इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर का अपना अपना हम में से हर एक परमेश्वर का अपना अपना लेखा दे. मतलब है मनु जो कुछ करता है ना, उसके पीछे क्या होगा, एक योजना होगा, पर्पस होगा, मकसद होगा. மனிதன் ஒவ்வொரு காலத்துக்கு பின்னாடி ஒரு நோக்கம் இருக்கும். बाहर में किसे दिखेगा भलाई, लेकिन अंदर क्या है, वही बुराई. வெளியே நன்மை போல தெரியும், உள்ளுக்குள்ள அவனுடைய நோக்கம் வித்தியாசமா இருக்கும். परमेश्वर ऐसे जो सोच है, विचार है, जो मनुष्य के हृदय से बचपन से उत्पन्न हो रहा है, इसी का परमेश्वर न्याय करेगा. மனிதனுடைய இருதயத்தின் தோற்றங்களை குறித்து ஆண்டவர் நியாயம்
விசாரிக்க போகிறார். ஆகையினாலே இவைகளை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், இவைகளை அரசாங்கம் कंट्रोल பண்ணா எப்படி பண்ணும். एक चीज है, बुराई के लिए बढ़ावा सरकार नहीं देना चाहिए. தீமைகள் பெருகாதபடி அரசாங்கம் என்ன செய்யணும், செய்ய வேண்டும். उदाहरण के लिए कानून बना दिया सिगरेट नहीं पीना है. सिगरेट पीने से क्या होता है, कैंसर होता, लिखा है ना, तंबाकू इसमें लिखा है, इसको सेवन करने से क्या होता है, कैंसर होता है. शराब नहीं पीना है, शराब से क्या होता है, उजड़ जाता है. कुड़ी पड़कम कुड़िये कड़ुक्कुम, कुड़िये कड़ुक्कुम, कोई पिड़ते என்ன செய்யும், कैंसर उंडाकुम. இதெல்லாம் ये सब तो आप बुराई है, लेकिन सरकार क्या बुराई को कंट्रोल करता है, सबको बढ़ाया देता है. அரசாங்கங்கள் இந்த தீமைகளை கட்டுப்படுத்துவதில்லை, அது மேற்கொண்டு வளர விடுகிறது, பெருகுகிறது. ऐसा बहुत है. ये रेड लाइट एरिया है दुनिया देश में, उसको रोकना चाहिए, लेकिन सरकार उसका लाइसेंस दे दिया, करो சிவப்பூர் பகுதியில லைசன்ஸ் கொடுத்து அரசாங்கம் அது ஒரு ப்ரொஃபஷனா வச்சிருக்கு, அது கண்ட்ரோல் பண்றது கிடையாது. सिनिक में क्या होता है, जितना होता है बुराई होती है, 99% बुराई होती है. उसके लिए बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट बहुत कुछ बेस्ट देता है. कैसे होगा कंट्रोल, बढ़ता ही जाएगा. विजुअल मीडिया पाकुறோம், சினிமா உலகம், திரையுலகம், என்னென்ன உலகம் இருக்குது, இதெல்லாம் உலகத்தை கெடுக்குது, நாசம் பண்ணுது. இதை எந்த அரசாங்கம் கட்டுப்படுத்துது, அவங்க சிறந்த நடிகை, சிறந்த டைரக்டர் கொடுத்து பெருகு செய்யறாங்க ஒழிய கம்மியாகுது. सो सरकार का ये काम है कि कंट्रोल करे, लेकिन नहीं कर रहा. அரசாங்கம் இதை कंट्रोल பண்ணணும், ஆனா பண்ணுகிறது இல்லை. तीसरा हम देखते हैं उत्पत्ति 6 का 11, 12, 13 पढ़ेगा. आदि 11 पढ़ेंगे. वहां लिखा है उस समय पृथ्वी और परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई, पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई थी. क्योंकि सब प्राणी अपना मार्ग, पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़. मात्र सारे प्राणियां परमे தேவன் பூமியை பார்த்தா இதோ அது கொடுமையினால் இருந்தது. பூமி தேவன் முன்பாக சீர்கெட்டதாய் இருந்தது. தேவன் பூமியை பார்த்தால் சகல மாம்சமான யாவரும் தங்கள் வழிகளை கெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். இதுதான் ஆதியாகமத்துல 6வது அதிகாரம் 10, 11, 12 இருக்குது. इसका मतलब है इसी वजह परमेश्वर उसको नाश किया. वायलेंस, इंग्लिश का मतलब वायलेंस. जो हिंदी अनुवाद में क्या लिखा है, बिगड़ा हुआ लिखा है, बिगड़ा. तमिल में लिखा है, तमिल है पुडुमई, वायलेंट. इन दोनों का क्या है ना, कोई कानून व्यवस्था नहीं, अव्यवस्थित. मतलब व्यवस्था है, लेकिन कोई कानून व्यवस्था को पालन करने के लिए तैयार. சட்டங்கள் இருக்குது, அதை கை கொள்ளாத ஒரு நிலைக்கு தான் கொடுமைங்கிறது வேதத்துடைய டெர்மினாலஜி. சட்டம் இருந்து மனிதன் கை கொள்ளாமல் போனா அதுதான் கொடுமை, वायलेंट. अगर इंसान कानून को उसने धज्जियां उड़ाएगा, उसको बाइबल बताती है वायलेंस है. क्या वायलेंस ठीक. सो परमेश्वर वायलेंस के कारण ही பகலா துனியாவுக்கு நாஷ் கராங்க. ஆண்டவர் முதல் உலகத்தை நாசப்படுக்கான அவங்க கொடுமையால் இருந்திருந்தாங்க. सरकार को क्या करना है, ऐसा ना हो. लॉलेसनेस मतलब व्यवस्था को क्या करना है, पालन लोग करना है.
वायलेंस लॉ लेस का मतलब क्या है? लॉ क्या है? पुरुष और स्त्री शादी करना क्या है? ये लॉ है ना। आप इन लोग करेंगे तो पुरुष और पुरुष, स्त्री और स्त्री करेंगे तो क्या लॉ है, कानून है। समलैंगिकता कानून नहीं है, लेकिन लोग इसको चाहते हैं हम करेंगे, है ना। ஓரினை சேர்க்கை பாவம் அப்படின்னு சட்டம் இருக்குது. ஆனா இப்ப மக்கள் அதை வேணுங்கிறாங்க. இதுதான் சீர்கெட்டு போன உலகம். नोवा के दिन में यही था। और ईश्वर को पूजना है, सृष्टिकर्ता को पूजना है। वो लोग क्या करते थे? सृष्टि को पूजते थे। ये है ஆண்டவரை தொழுது சிருஷ்டியை தொழுது கொள்ள வேண்டியது. ஆனா சிருஷ்டியை தொழுது கொண்டார்கள். परमेश्वर का स्वरूप नहीं है, अरूप है, लोग पता है, लेकिन उसके नाम क्या है? रूप देंगे। ये है ஆண்டவர் ரூபம் இல்லாத அவருக்கு ரூபம் கொடுப்பேன்னு சொன்னாம்னா அது என்னது? புதுமை. जो करना उसको करना, नहीं करना है, जो नहीं करना उसको करना, यही तो क्या है? लॉलेसनेस, अपराध है, यही है बिगड़ाव. எதை பண்ணணுமோ அதை பண்ணாததும், எதை பண்ண வேண்டியதோ அதை பண்ணாம இருப்பதுதான் கொடுமை, சட்டம் இல்லாதது. इसके कारण ही परमेश्वर धरती को नाश किया. अब सरकार का अधिकार दिया हुआ, इसको क्या करें? कंट्रोल करें. जो पाप बढ़ गया था, जिसके कारण सर्वनाश हुआ, उसको सप्रेस करें, दबाए. सरकार इसको नहीं करता है. क्या होगा? फ्लड है, जल प्रलय है, क्या है? जजमेंट. क्या हिंदी बोलते हैं? न्याय. जल प्रलय न्याय. ये तो नेचुरल डिजास्टर है. क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राकृतिक आपदा. नेचुरल இயற்கை பேரிடர். करेक्ट. இயற்கை பேரிடர். सो जहां कहीं प्राकृतिक आपदा होता है, எங்கெல்லாம் இயற்கை பேரிடர் நடக்குதோ वहां की सरकार इसको चेक करना है. या हमारे यहाँ लोग धार्मिक इच्छा के खिलाफ चलते हैं? क्या लोग हमारे यहाँ बुरे इच्छा से कुछ काम को पूरा करते हैं, उसमें सफलता पाते हैं? या हमारे यहाँ कानून के विरोध में लोग जाते हैं, परम कानून विरोध में देखना है, चेक करना है, नहीं तो वहां आपका पड़ता ही है. बाइबल का मेरा अनुसार नहीं, बाइबल का अनुसार எங்கெல்லாம் இயற்கை பேரிடர் நடக்கும் அங்கெல்லாம் அரசாங்கம் என்ன செய்யணும்? மக்கள் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு விரோதமா போகிறார்களா என்று பார்க்கணும். மக்கள் உள்ள ஒண்ணை வச்சுட்டு வெளியே ஒண்ணு செய்யறாங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும். தேவனுடைய சித்தத்துக்கும் சட்டத்துக்கு விரோதமா நடக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இல்லாத பட்சத்துல பேரிடர்கள் என்ன செய்யும்? பெருகத்தான் செய்யும். तो आपको मुझको क्या करना है? जब कभी हमारे आसपास में होता है आपदा, अपने को क्या करें? थोड़ा चेक करके देखें क्या हम इसका कारण है. எங்கேயும் நம்முடைய இடங்களை பேர் நடக்கணும்னா நான் இதுக்கு காரணமா நாம் நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம். या आपके मेरे जीवन में कोई समस्या, क्राइसिस, क्या बोलते हैं, संकट आता है, तो हम सोचे क्या हम परमेश्वर के लाभ में हैं. நம்முடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது நாம் யோசிப்போம், நான் எங்கேயாவது ஆண்டுக்கு விரோதமாக செயல்பட்டு இருக்கிறானா அப்படின்னு சொல்லி चेक करके हम अपने सुधारेंगे. और जहाँ कहीं हम काम करते हैं वहां हम क्या करेंगे? ऐसे मनुष्य के साथ काम करें. நாம் எங்கெல்லாம் வேலை செய்யறோமோ வேலை பார்க்க स्थलத்தில் இருக்கிறதுல இதை மனதில் கொண்டு நாம் செயல்படுவோம். और हम प्रार्थना करें हमारा सरकार अपने जिम्मेवारी को पूरा करे. நான் நம்முடைய அரசாங்கங்கள் அதனுடைய பொறுப்புகளை ஒழுங்கா செய்வதற்காக